Good morning, student of class 4th. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class. Student, today date is 19 January 2021 and I am teaching you chapter number 23 and the name of the chapter is the land of India. So, name of the chapter is the land of the India. Now see student, let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So student, in our previous video I explained you about desert region. It means we discuss about the Great Indian Desert, that is the Thar Desert. Great Indian Desert, that is the Thar Desert. Okay, so see student, 85% of the desert is in our country, that is India, and 15% 85% part of Thar Desert is in India. Is it clear? 85% part of Thar Desert is in India and 15% part of desert is in neighboring country, that is in Pakistan, and 15% part of Thar Desert is in Pakistan. So student, the rainfall is very less in this region. The soil is dry and there is very less population and vegetation is also very less in this desert area. Vegetation means पेड़ पौधे भी बहुत कम है, ठीक है, बिकॉज यहाँ क्या वाटर नहीं है. यहाँ वही ट्रीज सर्वाइव कर सकती हैं जो विच कैन लिव इन दिस desert area without water for long period of a time, like cactus है, बबूल है. ओके, सो ये सब हमने डिस्कस किया था. आज बेटा हम क्विक रिकैप्चुलेशन करा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी पूरा डिटेल में इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने थार डेजर्ट आपको बता रखा है, ठीक है. बट नाउ प्रेजेंट टाइम में हम बात करते हैं कि थार डेजर्ट में क्या है, बहुत सी चेंजेस आई ड्यू टू द Indira Gandhi Canal. Now this is the water of the Satluj river and this canal is 650 km long and this is the water of a Satluj river and this river water which is coming from the dam which was built on the Satluj river has changed the life of people of Rajasthan. Now in Rajasthan area also you will see people are doing cultivation. Different types of crops are also grown in Rajasthan area also, and in the cities area you will see a good roads are also available in this area. So due to the water of the Satluj river through the dam which was built on the Satluj river,
the life of the people of the Rajasthan also change. Now the only river of the Luni is the river, but see, I told you in many videos that in the end what happened, the river water get mixed into the sea water. ठीक है, लास्ट में क्या होता है, नदियों का पानी किस में मिक्स हो जाता है, सी में मिक्स हो जाता है. तो राजस्थान की बात करें तो वहाँ की रिवर कौन सी है, लूनी रिवर है. ठीक है, लेकिन एरिया इज सो हॉट, वेदर इज सो hot weather, that is the reason the rainfall is very less in this area, even vegetation is very less. And we know that plants also help us to bring the rain, plant help to bring the rain, and there is very less vegetation in this area. ठीक है, सो ये डिस्कस कर लिया आप लोग के संग, वेजिटेशन भी लेस है और पॉपुलेशन भी राजस्थान में क्या है, लेस है. ठीक है, सो द वाटर रेनफॉल इज लेस है, इसलिए रिवर जो है यहाँ की, एक रिवर जो लूनी रिवर है उसमें वाटर क्या है, बहुत लेस है. और इस रिवर का वाटर जो राजस्थान में रिवर्स हैं, इनका वाटर लास्ट में जाके सी वाटर में इंटर नहीं करता है, बिकॉज द क्लाइमेट इज वेरी हॉट. और आप कह सकते हो वेदर क्या है, बहुत हॉट है, रेनफॉल बहुत लेस है, इसलिए इन नदियों में इतना पानी नहीं होता है कि इनका पानी लास्ट में जाके सी वाटर में इंटर कर सके, बिकॉज द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर इज वेरी लेस. ठीक है, उसके बाद अब देखो साउदर्न प्लेट्यूज की बात करते हैं हम. उसके बाद अब हम लोग बेटा साउदर्न प्लेट्यूज की बात करते हैं. ठीक है, साउदर्न प्लेट्यू. नाउ अब देखो, जब हम लोग साउदर्न प्लेट्यूज की बात करते हैं, ठीक है, जब हम लोग प्लेट्यूज की बात करते हैं बेटा, तो एक बार फिर से जरा सा डायग्राम से आपको दिखाऊंगा तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी. ठीक है, सो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज, ये जो शेप आ रही है, ठीक है, ये शेप जो बेटा आ रही है, ये क्या है, ट्रायंगुलर शेप आ रही है आपकी जो प्लेट्यू है. ठीक है, जो शेप आपकी आ रही है, दिस इज अ ट्रायंगुलर शेप. ये कैसी शेप आ रही है, ट्रायंगुलर. ठीक है, दिस इज द ईस्ट, ये क्या है, दिस इज द ईस्ट. ठीक है, और यहाँ आपका है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल. ईस्ट में आपका आ गया बेटा बे ऑफ बंगाल. वेस्ट है, दिस इज द वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ पे आपका आ गया अरेबियन सी, ARABIAN, अरेबियन सी आ गई. ठीक है, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये क्या है, साउथ. दिस इज अ, ये पार्ट आपका हो गया, ये पार्ट आपका हो गया साउथ. दिस इज साउथ. और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा इंडियन ओशन. यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इंडियन ओशन. इज इट क्लियर? अब देखो, जो इंडिया का ये वाला पोर्शन जो है, इट इज अ ट्रायंगुलर शेप है. ये किस शेप में है बेटा, ये ट्रायंगुलर शेप में है. ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप में है, और ये फ्रॉम द थ्री साइडेड इट इज सराउंडेड बाय द वाटर, और थ्री साइड से ये वाटर से सराउंडेड है. इन द ईस्ट बे ऑफ बंगाल, इन द वेस्ट अरेबियन सी, एंड इन द साउथ इंडियन ओशन. ये थ्री साइड से वाटर बॉडीज से क्या सराउंडेड है.
और ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपका प्लेट्यू की जब हम लोग बात करते हैं, सो जब फॉर एग्जांपल वेस्ट से जो ईस्ट है ना बेटा, फॉर एग्जांपल दिस इज माय हैंड, ठीक है, तो वेस्ट से ईस्ट जरा सा ये टिल्टेड है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट जरा सा टिल्टेड है, तो मैक्सिमम रिवर्स जो है वेस्ट से फ्लो कर रही हैं, ठीक है, ये टिल्टेड है, तो मैक्सिमम रिवर वाटर फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की ओर जा रहा है, ठीक है, मैक्सिमम रिवर्स क्या है, वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है, और लास्ट में इनका वाटर किस में मिक्सअप हो जा रहा है, इंटर कर जा रहा है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है बेटा, लास्ट में इनका वाटर किस में इंटर हो जाता है, बे ऑफ बंगाल में, और जो रिवर ईस्ट से वेस्ट की ओर आ रही है, ठीक है, जो रिवर्स वेस्ट है, क्योंकि वेस्ट में क्या मैंने बताया हल्का सा टिल्टेड है, थोड़ा सा ऊंचा टिल्ट है, तो इधर स्लोप बन रही है ईस्ट की ओर, तो मैक्सिमम रिवर जो है वो तो आपकी बे ऑफ बंगाल में ही इंटर करती है, बट सम रिवर्स विच स्टार्ट फ्रॉम ईस्ट एंड दे फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट, सो ये रिवर्स लास्ट में किस में जाके इंटर कर जाएंगी, इसमें अरेबियन सी में, ठीक है, द रिवर्स विच आर कमिंग फ्रॉम द वेस्ट, और यू कैन से द रिवर्स विच आर फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ओके, नाउ दिस इज क्लियर कर लो, यहां से जो रिवर ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो कर रही है, उन रिवर्स का वाटर कहाँ इंटर कर जाएगा, दैट वाटर इंटर्स इनटू द अरेबियन सी, और जो वेस्ट से ईस्ट जा रही है उसका जा रहा है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, सो यहाँ तक अब आप लोगों को बता ही दिया मैंने, अब इसमें मेन चीज देख लो, और द साउदर्न प्लेट्यू कवर्स, ये जो साउदर्न प्लेट्यू है कवर्स मोस्ट ऑफ द पेंसुलर रीजन, ठीक है, पेंसुलर रीजन मतलब आपको आ गया समझ में, 3 साइडेड से ये क्या है, सराउंडेड है वाटर बॉडी से, और ये किस टाइप की शेप यहाँ बनती है, ट्रायंगुलर शेप बनती है, ये किस टाइप की शेप बन रही है, ट्रायंगुलर शेप बन रही है, ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब कुछ चीजें हैं सेंट्रल ठीक है, अब देखो इट लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन एंड इज शेप्ड लाइक ए ट्रायंगल, ठीक है, अब जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स किसके बीच में थे, हिमालयाज रेंज और पेंसुलर प्लेट्यू के बीच में थे, जैसे ये हिमालयाज है, ये साउदर्न प्लेट्यूज हैं, तो इनके बीच में जो हुए वो थे तुम्हारे नॉर्दर्न प्लेन्स, जो कि कितनी स्टेट्स को टच कर रहे हैं, 6 स्टेट को, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, और वेस्ट बंगाल एंड असम, तो इतनी स्टेट्स को ये आपके क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। अब नॉर्दर्न प्लेन्स, अब देखो दीज प्लेट्यू स्लो डाउनवर्ड्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हल्का सा मैंने आप लोग को बताया ना, हल्का से टिल्टेड है, ठीक है, दिस प्लेट्यू स्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम वेस्ट से ईस्ट की ओर हल्का सा टिल्टेड है, ठीक है, फिर है विच इज वाई मोस्ट रिवर इन दिस रीजन फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो और इसका रीजन क्या है, मोस्टली रिवर्स वेस्ट से ईस्ट की ओर, क्योंकि हल्का सा टिल्टेड है तो रिवर का स्लोप किधर, ईस्ट की ओर जा रहा है, तो जो मैक्सिमम रिवर्स है वो कहां से फ्लो कर रही है, वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है, और इन द लास्ट उनका वाटर किसमें चला जा रहा है, बे ऑफ बंगाल में इंटर कर जा रहा है, ठीक है, आगे ही बात समझ में, लास्ट में उनका वाटर किसमें इंटर कर जा रहा है, बे ऑफ बंगाल, और व्हाट आर द रिवर्स विच फ्लो फ्रॉम, कुछ रिवर्स के नाम नोट कर सकते हो या अंडरलाइन कर सकते हो, द रिवर्स विच फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, नेम ऑफ द रिवर्स आर, इसको रब कर देते हैं, नेम ऑफ द रिवर्स यहां लिख देते हैं, रिवर्स लाइक, गोदावरी,
गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा एंड गोदावरी, कृष्णा देखो गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, कावेरी फ्लो इनटू they flow into Bay of बंगाल। ठीक है, जे और जे रिवर कहां से चल रही है? दे आर फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, सो मोस्टली रिवर्स कहां से फ्लो कर रही है? वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रही है। लाइक गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल। अब ये वेस्ट से इनकी ओरिजिन है, यहाँ से चल रही हैं और फ्लो कर रही हैं ईस्ट की ओर। और ईस्ट में कौन सी सी है? बे ऑफ बंगाल है। ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल है। और इसमें इनका वाटर लास्ट में इसमें इंटर कर जा रहा है, किसमें? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नाउ इनटू बे ऑफ बंगाल। अब देखो, देयर आर ओनली 2 रिवर्स विच फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, रिवर्स फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। Rivers flow from east to west and the name of the rivers are Narmada and Tapi. Okay, so rivers now Narmada, ठीक है, Narmada and Tapi rivers, Narmada and Tapi rivers, Narmada and Tapi rivers. Okay student, Narmada and Tapi rivers flow into the Arabian Sea। सो देखो, अब क्या है बेटा? गोदावरी है, कृष्णा। अब इस बात को समझ लो, जब हम लोग ने प्लेट्यूज की बात की तो मैक्सिमम रिवर यहाँ पे जो फ्लो कर रही है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर कर रही है। रीजन क्या है? क्योंकि इसकी हल्का सा टिल्टेड है, वेस्ट से ईस्ट की ओर हल्का स्लोप है। ठीक है, वेस्ट से थोड़ा ऊंचा है और ईस्ट की ओर स्लोप बन रही है, इसकी वजह से हल्का सा टिल्टेड है जो तुम्हारा डेक्कन प्लेट्यू। और या तो तुम लोग साउदर्न प्लेट्यू कर लोगे, क्योंकि अभी जब हायर क्लास में जाओगे तब तुम इसे अभी तो क्लास 4 के स्टैंडर्ड से सिर्फ प्लेट्यू बोल के आपको एक्सप्लेन कर दिया है। वहाँ प्लेट्यूज में भी अलग अलग प्लेट्यूज है, डेक्कन प्लेट्यूज है, छोटा नागपुर है, तो ये सब चीज़ें फर्दर क्लास में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो अब यहाँ मोस्टली आपके नॉलेज के लिए चीज़ क्या थी कि मोस्ट रिवर्स आर फ्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। अगर कोई रीज़न पूछ ले वाई तो उसके लिए बता देना कि डेक्कन प्लेट्यू हल्का सा टिल्टेड है। ठीक है, हल्का सा टिल्टेड है
वेस्ट से ईस्ट की ओर, इसलिए रिवर्स मैक्सिमम वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो करती है। जैसे सम ऑफ द नेम ऑफ द रिवर्स व्हिच फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दैट इज गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अब देखो रिवर्स फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो करने वाली दो ही रिवर्स है बेटा, एक तो है आपकी नर्मदा और एक तापी रिवर्स है। तो ये ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही है, तो वेस्ट में कौन सी सी है? अरेबियन सी। सो द वाटर ऑफ दीज रिवर्स, दैट इज नर्मदा एंड तापी रिवर्स, दिस वाटर एंटर्स इनटू द अरेबियन सी। ये वाटर किस में एंटर हो जाता है बेटा? अरेबियन सी में एंटर हो जाता है ये वाटर। ठीक, तो आप ये हमेशा याद रखना, नर्मदा एंड तापी, These are the only two rivers। ये सिर्फ दो रिवर हैं जो ईस्ट से वेस्ट की ओर आ रही हैं, लेकिन वेस्ट से मैंने भले 3 नेम्स लिखे हैं ऊपर, लेकिन वेस्ट से ईस्ट को जाने वाली ज्यादा रिवर्स हैं। ठीक है, अब इन रिवर्स के बारे में अगली इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बता देता हूं कि देखो इन रिवर्स में बहुत ज्यादा वाटर नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है? इन रिवर्स में बहुत ज्यादा वाटर नहीं होता, क्योंकि ये क्या है? मानसून रिवर्स है, मानसून रिवर्स है। ठीक है, सो एट द टाइम ऑफ ए मानसून, जब रेनी सीजन होता है, बारिश का टाइम होता है, तभी इन रिवर्स में पानी बढ़ता है। ठीक है, जैसे हम लोग ने नॉर्दर्न प्लेन्स में बात की थी, तो नॉर्दर्न प्लेन्स वाली जितनी भी रिवर्स थी वो माउंटेन्स रिवर्स थी, उनकी ऑरिजिन ग्लेशियर से हो रही थी। तो वो कैसी रिवर थी? पेरिनियल रिवर्स थी। ठीक है, इन दैट रिवर्स हैविंग वाटर थ्रू आउट द ईयर, बिकॉज दैट रिवर्स आर फाउंड बाय द मेल्टिंग ऑफ द स्नो। वो माउंटेन रिवर्स थी, उनमें पूरे साल पानी होता था। क्यों? उनकी ऑरिजिन किससे? ग्लेशियर से, मीन्स मेल्टिंग ऑफ स्नो। जो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े थे ना, जब वो मेल्ट करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होने से, तो उनसे उनमें वाटर बना है। ठीक है, तो वो रिवर्स क्या है? बहुत ज़्यादा नॉर्दर्न प्लेन्स ये सब एरिया में वो रिवर्स बहुत फ्लड लाती हैं। क्यों? उन रिवर से बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। क्यों? ऑलरेडी वो रिवर्स क्या है? पेरिनियल रिवर्स है। ठीक है, ऑलरेडी वो रिवर्स कैसी हैं? पेरिनियल रिवर्स है, उनमें कभी भी पानी क्या होता है? थ्रू आउट द ईयर उन रिवर्स में पानी होता है, क्योंकि वो मेल्टिंग ऑफ स्नो से बन रही है। और एट द टाइम ऑफ रेनी सीजन, और यू कैन से मानसून सीजन, तो मानसून सीजन में जब एक्सेस ऑफ रेनफॉल होती है, तो इन रिवर्स में वाटर ओवरफ्लो होने लगता है। इतना ज़्यादा पानी हो जाता है इन रिवर्स में कि वो वाटर ओवरफ्लो होने लगता है, एंड इट स्टार्ट कवरिंग द सराउंडिंग एरिया, so that all the things are submerged in that water। पानी ओवरफ्लो होने लगता है तो अगल बगल के जितने भी सराउंडिंग्स एरिया हैं सारे पानी में डूबने लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाली रिवर्स जो जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है वो पेरिनियल रिवर्स हैं बेटा, ये याद रखना, क्योंकि इनमें पानी ऑलरेडी रहता है, पूरे साल इनमें पानी रहता है, और जब मानसून में एक्सेस बारिश होती है तो इनमें पानी और ज़्यादा हो जाता है। और जब रिवर्स में एक्सेस वाटर होगा तो डेफिनेटली वो वाटर ओवरफ्लो होके बाहर सराउंडिंग्स एरिया को सबमर्ज्ड करने लगेगा, सराउंडिंग एरियाज को डुबाने लगेगा। तो इस कंडीशन को हम लोग फ्लड्स कहते हैं। इसमें ह्यूमन बींग्स की जान को भी बहुत खतरा होता है, एंड इवन लॉट ऑफ डैमेज इज बीन डन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन लाइफ है, एनिमल लाइफ, ह्यूमन भी सफ़र करते हैं, एनिमल्स भी बहुत से पानी में बह के चले जाते हैं, पानी के फ्लो में डूब जाते हैं, और इसके साथ साथ जो ह्यूमन प्रॉपर्टी है उसका भी बहुत नुकसान होता है। ठीक है, अब देखो, अब जब हमने ईस्ट की तरफ से बात किया तो ये सिर्फ 2 नदियां हैं जो, अब देखो, जो तुम्हारे वेस्टर्न और ईस्टर्न में जो रिवर्स हैं, तो ये रिवर्स क्या है? माउंटेन्स रिवर्स नहीं है, ये पेरिनियल नहीं है कि इनके अंदर पूरे साल वाटर रहता है और बारिश होगी तो और बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये रिवर्स
क्या है, इनमें थ्रू आउट द ईयर वाटर नहीं होता है, मानसून के समय इन रिवर्स में वाटर बढ़ता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ ए मानसून द लेवल ऑफ द वाटर इंक्रीज इन दीज रिवर्स, और ऐसे, ठीक है। तो दूसरा मेन पॉइंट ये याद रखना कि जो वेस्टर्न, ये जो तुम्हारे प्लेट्यूज हैं, इसमें जो भी रिवर्स हैं ये माउंटेन रिवर्स या पेरिनियल रिवर्स नहीं है, ठीक है। इनमें थ्रू आउट वाटर, थ्रू आउट द ईयर वाटर नहीं होता है, ये आप इस बात को क्लियरली दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इस बुक में भी दिया है, ऑल्दो देयर आर मेनी रिवर इन दिस रीजन नॉट ऑल ऑफ देम हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। इस रीजन में काफ़ी रिवर है, लेकिन कई रिवर्स ऐसी हैं जिसमें थ्रू आउट ईयर वाटर नहीं होता है। नेक्स्ट है द सॉर्दर्न प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड ऑन द ईस्ट बाई हिल रेंज called the Eastern Ghats and on the west by another range called the Western Ghats। तो अब देखो, अभी मैंने पिक्चर बनाई थी, फिर मैंने रब कर दी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी पिक्चर फिर से बनाते हैं, जैसे ये इंडिया का मैप है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन क्या था, ये ईस्ट का था, ये वेस्ट का था, और ये क्या था, साउथ था, ठीक है। और आपके इसी के बीचों बीच ऐसे करके आपका क्या था, ये पोर्शन आपका प्लेट्यू था, ठीक है। तो अब देखो बेटा, ये जो देखो, ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है जो मैं डार्क करके बना रहा हूँ, ठीक है, ये जो पोर्शन डार्क करके मैं बना रहा हूँ, तो ईस्ट वाले पोर्शन को ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं, ईस्ट वाले पोर्शन को ईस्टर्न घाट बोलेंगे, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स, और वेस्ट वाले पोर्शन को वेस्टर्न घाट्स बोलेंगे। वेस्ट वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, वेस्टर्न, वेस्ट वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। ईस्ट वाले पोर्शन को ईस्टर्न घाट बोलेंगे, वेस्ट वाले पोर्शन को वेस्टर्न घाट बोलेंगे। और ये जो है ना बेटा, ये कंटिन्यूअस माउंटेन हिल रेंज है, ठीक है, ये क्या आपकी कंटिन्यूअस हिल रेंज है, ठीक है। इसके ये कंटिन्यूअस हिल्स हैं, माउंटेन्स नहीं है, माउंटेन्स की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, माउंटेन्स की हाइट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इधर के तरफ जो हुए, इधर के तरफ जो हुए उसे वेस्टर्न घाट्स बोलेंगे, और इधर के तरफ जो होंगे उसको ईस्टर्न घाट्स कहेंगे। और ये एक कंटिन्यूअस हिल रेंज है, ठीक है, दोनों तरफ, वेस्टर्न की तरफ भी और ईस्टर्न की तरफ भी, ये कंटिन्यूअस है, ब्रेक नहीं है इसमें, ये कंटिन्यूअस हिल रेंज है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स भी। आ रही है बात समझ में। अब देखो, अब इसने बोला है द साउदर्न प्लेट्यू इज बॉर्डर ऑन द ईस्ट बाय हिल रेंज। ईस्ट में कौन सी रेंज बताई मैंने, ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट्स on the west by another range called the western घाट। और ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी अभी बताया कि ये क्या है, हिल्स है, टोटली ये कंटिन्यूअस रेंज ऑफ द हिल्स है। वेस्टर्न वालों को, वेस्टर्न हिल्स को बोलेंगे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न साइड पे जो हिल्स है इनको हम बोलेंगे ईस्टर्न घाट्स। इज इट क्लियर। और इन द नॉर्थ में अगर हम देखते हैं बेटा, तो इन द नॉर्थ, ठीक है, इन द नॉर्थ, इन द नॉर्थ द हिल्स, हिल्स, द हिल्स ऑफ द, हिल्स ऑफ द सतपुरा, सतपुरा रेंज है बेटा हिल्स की, ठीक है, हिल्स ऑफ द सतपुरा and the Vindhya ranges, and the Vindhya, Satpura and the Vindhyas ranges separate ranges separate the plateau, separate the plateau from the
नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, अब इस चीज को देख लो। इन द नॉर्थ में द हिल्स, नॉर्थ में क्या है, हिल्स ऑफ सतपुरा और विंध्या रेंजेस प्लेट्यू को किससे सेपरेट कर रही है, नॉर्दर्न प्लेन से। इज इट क्लियर, प्लेट्यू को किससे सेपरेट कर रही है, नॉर्दर्न प्लेन से। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।